Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss chapter 3 from book Hornbill. Name of chapter 3 is Discovering Tut. The saga continues. Tut किंग का नाम है और सागा मीन्स क्या है? स्टोरी. तो जो किंग टट है उनकी डिस्कवरी की जो स्टोरी है वो कंटिन्यूज इस चैप्टर में दिखाई गई है. Written by A.R. Williams. Let's take an introduction of the characters. In this chapter, there are 5 main characters. Number 1 is Jahi Hawass. He was the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Antiquities means क्या? Past time, ancient past, पुराने समय से संबंधित. Next है Howard Carter. He is the British archaeologist. He is the one who discovered King Tut's tomb in 1922. Next is Amenhotep III. He was the King Tut's grandfather or father. Father भी हो सकते हैं, grandfather भी हो सकते हैं. It is not clear in the story. He was the powerful pharaoh. Pharaoh means भी क्या है? King. Who ruled almost 4 decades. Next is Amenhotep IV. He was the successor of Amenhotep III. He promoted the worship of Aten. Aten means क्या है? God of sun. And changed his name to Akhenaten. He moved the religious capital also. Next is Tut. His actual name was Tutankhaten. He is widely known as Tut. He was just a teenager when he became king. He changed his name to Tutankhamun. He ruled for about 9 years and died unexpectedly. Unexpectedly means क्या? समय से पहले, ऐसे में बिना किसी उम्मीद के उनकी डेथ हो गई थी. Students, let's take an introduction of the chapter. In this chapter, we came to know about King Tut, who was the last heir of a powerful empire in Egypt. He lived from 1370 BC to 1352 BC. It is a mystery about his death. That's why archaeologists discovered his tomb and tried to find out the secret of his death. And his mummy became the first mummy to be CT scanned. Here King Tut was buried with all the luxurious which were needed by a man, because in ancient times it was considered that there is a life after death and a person needed all the things of luxuries in his life after death. Here the writer also want to tell us about the hard work, about the problems faced by the archaeologists in the process of CT scan of Tut's mummy. Students, let's discuss the chapter line by line. Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss chapter 3 from book Hornbill. Name of chapter 3 is Discovering Tut. The saga continues. Tut किंग का नाम है और सागा मीन्स क्या है? स्टोरी. तो जो किंग टट है उनकी डिस्कवरी की जो स्टोरी है वो कंटिन्यूज इस चैप्टर में दिखाई गई है. Written by A.R. Williams.
let's take an introduction of the characters. In this chapter, there are 5 main characters. Number 1 is Jahi Hawass. He was the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Antiquities means past time, ancient past, पुराने समय से संबंधित. Next है Howard Carter. He is the British archaeologist. He is the one who discovered King Tut's tomb in 1922. Next is Amenhotep III. He was the King Tut's grandfather or father. Father भी हो सकते हैं, grandfather भी हो सकते हैं. It is not clear in the story. He was the powerful pharaoh. Pharaoh means भी क्या है? King. Who ruled almost 4 decades. Next is Amenhotep IV. He was the successor of Amenhotep III. He promoted the worship of Aten. Aten means क्या है? God of sun. And changed his name to Akhenaten. He moved the religious capital also. Next is Tut. His actual name was Tutankhaten. He is widely known as Tut. He was just a teenager when he became king. He changed his name to Tutankhamun. He ruled for about 9 years and died unexpectedly. Unexpectedly means क्या? समय से पहले, ऐसे में बिना किसी उम्मीद के उनकी डेथ हो गई थी. Students, let's take an introduction of the chapter. In this chapter, we came to know about King Tut, who was the last heir of a powerful empire in Egypt. He lived from 1370 BC to 1352 BC. It is a mystery about his death. That's why archaeologists discovered his tomb and tried to find out the secret of his death. And his mummy became the first mummy to be CT scanned. Here King Tut was buried with all the luxurious which were needed by a man, because in ancient times it was considered that there is a life after death and a person needed all the things of luxuries in his life after death. Here the writer also want to tell us about the hard work, about the problems faced by the archaeologists in the process of CT scan of Tut's mummy. Students, let's discuss the chapter line by line. बेटा, एक बार जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टट की डेथ एक बड़ा लॉस थी राजशाही खानदान के लिए. उसके मौत के बाद वो खानदान एक तरह से ख़त्म हो गया था. अब क्या बताया कि एमेनहोटेप थर्ड जो टट के फादर या ग्रैंडफादर थे, उन्होंने लगभग 40 इयर्स तक रूल किया और उनका शासनकाल स्वर्ण युग था उनके साम्राज्य में. उनके बाद उनका जो सक्सेसर था एमेनहोटेप फोर, वो आया और उन्होंने बहुत अजीब बदलाव कर दिया था. वो सन की बने, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, अखेनेटन रख लिया. उन्होंने एटन गॉड के वर्शिप के ऊपर ज़्यादा जोर डाला और जो एमन गॉड था उसके जो मंदिर थे, मूर्तियाँ थी, वो सब तोड़ डाली. काफ़ी बदलाव उसने कर दिए थे. उसने जो थीब्स कैपिटल थी रिलीजियस, उसको भी चेंज कर दिया था. और इसके बाद एक और
राजा का शासन आया समन काकरे, जो कि कुछ समय तक रहा और फिर गायब हो गया, उसका कोई चिन्ह नहीं मिला। उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? टुटनखाटन, जिसको कि टट के नाम से वर्ल्ड में जाना गया है। अब उन्होंने क्या किया, जो अमेनहेटप IV ने चेंज कर दिया था उसको वापस वो ले आया। पहले वाले जो रीति रिवाज थे, जो गॉड की वर्शिप थी, उन्होंने एटन गॉड को हटाकर एम्यून को अपनाया और उन्होंने भी अपना नाम टुटनखामन रख लिया, नाम भी चेंज किया और वापस से वही जो क्रियाकलाप थे साम्राज्य के वो स्थापित कर दिए। अब उनकी जो मम्मी है उसको एक्सरे के लिए निकाला गया था, सिटी स्कैन के लिए निकाला गया था। बहुत सारी अनगिनत जो मम्मियाँ थी मिस्र में, उनमें से एक वो मम्मी थी। और अब तक जो काउंटिंग रिकॉर्डेड थी वो 600 थी और इससे भी ज़्यादा हो सकती है, जिसमें जो पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन थी, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली सिटी स्कैन मशीन थी, उसके ज़रिए उनको क्या किया जा रहा था? स्कैन किया जा रहा था। और लाइफ में भी डेथ में भी सबसे पहली मम्मी, सबसे आगे चलने वाली मम्मी सिटी स्कैन के लिए कौन सी मम्मी बनी है? किंग टट की मम्मी। अब कंटिन्यू करते हैं। ए सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टॉय, जो एक कंप्यूटेड टोमोग्राफी मशीन थी, सिटी स्कैन मशीन थी, उसने स्कैन किया, बॉडी का परीक्षण किया, सर से लेकर पैर तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। क्या करते हुए, क्या कैसे इस मम्मी का सिटी स्कैन मशीन ने किया परीक्षण किया था? उसने 1700 डिजिटल एक्सरे किरणें निकाली जिससे इमेज बनाई गई क्रॉस सेक्शंस में। क्रॉस सेक्शन में क्या? कटे हुए पार्ट्स में, टुकड़े टुकड़ों में। टट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, जो टट का हेड था उसको स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर के टुकड़े के रूप में, टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। इंट्रिकेट मीन्स क्या? बहुत ही जटिल, उलझा हुआ, क्रूशियल जो स्ट्रक्चर था उसको समझने के लिए, जानने के लिए। टेक्स ऑन ईरी डिटेल्स, ईरी मीन्स क्या? स्ट्रेंज, अजीब, और यहाँ से अजीब जो डाटा थे, डिटेल थी, वो प्राप्त हुई। इन द रिजल्टिंग इमेज, जो इमेज बनी जब उसके हेड का एक्सरेज रेडियस के माध्यम से किया गया, तो जो इमेज बनी उसका रिजल्ट क्या था? बड़ा ईरी था, बड़ा स्ट्रेंज था, बड़ा विचित्र था। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, इसी तरह से टट की पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया, उसका लेखा जोखा लिया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फोरेंसिक, रेडियोलॉजी मीन्स क्या है? रेडियम ट्रीटमेंट। स्पेशलिस्ट मीन्स क्या है? बहुत ही माहिर काम में जो लोग थे, रेडियोलॉजी के काम में जो प्रख्यात स्पेशलिस्ट थे, निपुण कार्यकर्ता थे, उनकी टीम गठित की गई। फोरेंसिक्स, जो डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं कि डेथ का कारण जानने के लिए, उनकी टीम गठित की गई। एंड एनाटोमी बिगेन, एनाटोमी मीन्स क्या? शारीरिक विज्ञान से संबंधित जो विशेषज्ञ थे उनको शामिल किया गया। टू प्रोब मीन्स क्या है? सर्च, इन्वेस्टिगेट, खोज करने के लिए। द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गोडेसेस ऑफ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि इस रहस्य की जांच पड़ताल करने के लिए कि जो विंग्ड गोडेसेस हैं, पंखों वाली जो देवियां हैं, वो इस सोने से ढके हुए बरियल को, इस सोने की कब्र को, मीन्स बहुत सारा सोना उसके साथ दफनाया गया था, उसको, उस श्राइन की, उस प्लेस ऑफ वर्शिप की क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे, सुरक्षित रख रहे थे इतने लंबे समय से। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, और जो रात्रि थी स्कैनिंग की, उस रात्रि में जो वर्कमैन थे, काम करने वाले थे, वो टट को लेकर के आए थे उसके मकबरे से, उसके बॉक्स में। लाइक पाल बियरर्स मीन्स कौन होता है? जो कि कफिन को लेकर के जाते हैं, दोज हु कैरीज कफिन, ताबूत को ले जाने वालों की तरह से काम करने वाले उसको लेकर के आए थे। दे क्लाइम्ड ए रैम्प, रैम्प मीन्स क्या? स्लाइड, स्लोपिंग, वो एक स्लोपिंग उस पर चढ़े। एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, इनटू द स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड, जो कि स्विर्लिंग मीन्स क्या है? ऐसे घूमते हुए,
भंवर बनाता हुआ जो सैंड था बाहर की तरफ, उसमें से गुजरी। देन रोज इन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, फिर वो एक हाइड्रोलिक मीन्स कहता है दैट वर्क्स ऑन लिक्विड, दर चालित जो लिफ्ट थी उसमें वो सहारा लिया, उसका उन्होंने उपयोग किया। इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, उस ट्रेलर में शामिल किया गया था उस हाइड्रोलिक लिफ्ट को, और जहाँ पर जिसमें क्या रखी हुई थी, स्कैनर मशीन रखी हुई थी, सीटी स्कैन मशीन रखी हुई थी। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, 20 मिनट बाद 2 व्यक्ति वहाँ पर प्रकट हुए। एमएज मीन्स क्या, निकले, केम आउट, बाहर आए, 2 व्यक्ति वहाँ पर प्रकट हुए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, स्प्रिंटेड मीन्स क्या, रन फास्ट, जल्दी से दौड़ करके गए जो नज़दीक ऑफिस था उसके लिए। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वापिस आए एक जोड़ा प्लास्टिक के सफ़ेद फैंस को लेकर के, पंखे लेकर के। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, और जो $1 million की स्कैनर मशीन थी उसने काम करना बंद कर दिया था, क्विट कर दी थी, छोड़ दी थी उसने काम करना। क्यों? क्योंकि जो सैंड था उसकी मम्मी के साथ वो उसके कूलर फैंस में चला गया था। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, एक जो गार्ड था वहाँ पर संरक्षक था, उसने मजाक किया घबराते हुए कि ये अभिशाप है फेरो का, राजा का, किंग का अभिशाप है। क्या? कि जो मशीन है वो खराब हो गई है, वो काम नहीं कर रही है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, इवेंचुअली मीन्स क्या है, फाइनली, सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव, प्रोसीजर प्रोसेस, आखिरकार जो बदले गए फैन थे, जो दूसरे विकल्प के तौर पर रखे गए फैन थे प्लास्टिक के वाइट फैंस, उन्होंने बड़े अच्छे से काम किया और जो प्रक्रिया थी वो खत्म हुई। कौन सी प्रक्रिया चल रही थी? टट की मम्मी की सीटी स्कैन की। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और ये चेक करने के बाद कि कोई भी डाटा खत्म नहीं हुआ है, कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियंस मीन्स क्या है, टेक्निकल स्टाफ, जो तकनीकी टेक्नीशियंस थे उन्होंने क्या किया, वापस लौटा दिया टट को, उन वर्कमैन्स को, उन मजदूरों को। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो कि उसको वापस लेकर गए उसके मकबरे में। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, कि 3 घंटे से भी कम समय लगा इस प्रक्रिया में, 3 घंटे से कम समय में ही उसको वापस उसी जगह पर पहुंचा दिया गया था, उस कफन में, उस ताबूत में। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, और जो किंग था, जो फेरो था, वो वापस आराम कर रहा था बड़ी शांति से। वेयर द फनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर जो फनररी अंतिम संस्कार करने वाले जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, उन्होंने उसको बहुत लंबे समय पहले लेटाया था, अब वह वहीं पर आराम कर रहा था। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस, जो वापसी का ट्रेलर था उसमें एक तकनीशियन ने बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली अद्भुत जो इमेजेस थी वो निकाली। ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, टट की आश्चर्यजनक तस्वीरें देखी, इमेजेस देखी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, एक ग्रे हेड, भूरे बालों वाला सिर था, उसने शेप, आकृति ग्रहण कर ली थी। स्कैटरिंग मीन्स क्या, बिखरे हुए, स्प्रेडिंग, फैले हुए, ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स क्या होता है, छोटे छोटे डॉट लाइट के, स्मॉल डॉट्स ऑफ लाइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, उनसे क्या हो गया था, एक सर बन गया था, हेड बन गया था। एंड द टेक्नीशियन स्पन द टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, स्पन मीन्स क्या है, स्पिन के सेकंड फॉर्म में घुमाया। टेक्नीशियन ने अब घुमा घुमा कर देखा इसको, हर डायरेक्शन से जांचा परखा। टिल्टेड मीन्स क्या है, झुकाना, टिल्ट करके देखा, झुका करके देखा इसको। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमिक क्लास, जो गर्दन की जो हड्डियां थी, नेक वर्टिब्रे मीन्स क्या, नेक बोन, गर्दन की जो हड्डियां थी वो बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, जैसे कि किसी एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या आता है, जो शारीरिक विज्ञान है उसकी क्लास में जैसे दिखाई देता है। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, दूसरी इमेजेस में क्या देखने को मिला, एक हाथ। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, और रिब केज भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था।
काफ़ी सारे दृश्य थे उसके, एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और जो स्कल है, खोपड़ी है, उसका पार्ट भी नज़र आ रहा था, मीन्स पिक्चर बड़ी क्लियर बन रही थी वहाँ पर। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, परंतु अब उनके ऊपर जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो ख़त्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाय हवास स्माइल्ड, वापिस अपने चेयर में बैठते हुए जाय हवास मुस्कुराते हुए बोले, विजिबली रिलीव्ड, कि अब मैं स्पष्ट रूप से क्या हो गया हूँ, रिलीव्ड हो गया हूँ, बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने बोला था ना, क्या बोला था, कि जो होवार्ड कार्टर है उसने काफ़ी अक्सती हानि पहुँचाई है टट की मम्मी को। अब उसको क्या मिल गया कि सारे पार्ट्स ठीक हैं, तो उसको रिलैक्स फील हो रहा है। दैट नथिंग हैड गोन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी ज़्यादा गंभीर रूप से गलत नहीं था। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, कौन बोल रहा है? जाई हवास कह रहा है कि मैं पिछली रात्रि सो नहीं पाया था। नॉट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड भी नहीं सोया था, ही सेड, उसने कहा। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, परंतु अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और जिस समय तक हम वहाँ से नीचे आए सीढ़ियों से, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, जो मेटल की सीढ़ियाँ थी उनसे नीचे उतरते हुए टू द सैंडी ग्राउंड, रेत वाली ज़मीन पर पहुँच गए थे। द विंड हैड स्टॉप्ड, उस समय तक जो विंड थी वो रुक गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो सर्दकालीन हवा थी वो बहुत ठंडी थी, स्टिल मीन्स क्या, मोशनलेस थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, मीन्स वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, हवा थी वो भी एक तरह से थम गई थी, बिल्कुल शांत थी, जैसे कि वहाँ पर मौत का सन्नाटा हो, जैसे कि मौत अपने आप में शांत होती है। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और ये घाटी किनकी थी? बिछड़े हुए की, जो मरे हुए थे उनकी घाटी थी वहाँ पर। जस्ट अबो द एंट्रेंस, बिल्कुल जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था, एंट्रिंग प्लेस था, उसके ऊपर टू टच टॉम स्टूड ओरियन, तट के टॉम के जो एंट्रेंस था वहाँ पर ओरियन खड़ा था। ओरियन क्या है? कॉन्स्टलेशन, एक तारा समूह होता है, मृग तारा समूह। द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियंस न्यू एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, वह कॉन्स्टलेशन, वो स्टार ग्रुप जो कि क्या है, दैट द एंशियंट इजिप्टियंस न्यू, जिसको कि प्राचीन इजिप्ट में जाना गया कैसे है? द सोल ऑफ ऑसिरिस, ओसिरिस जो उनका गॉड है उसकी आत्मा के रूप में। ओसिरिस मिस्र का ही, इजिप्ट का ही गॉड है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, कैसा गॉड? आफ्टर लाइफ, मौत के बाद जो भगवान उनके साथ रहते हैं वो। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो कि वॉच करता है, जो कि संरक्षण करता है, उस बॉय किंग का मकबरे को रक्षा करता है, उसको देखता रहता है। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड Chapter 3, Discovering Tut, the saga continues completely. I hope it is clear to you. Thank you.